السلام علیکم۔ ہمارے ابن بطوطہ کے سفر نامے کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح اس نے شہروں، قوموں اور بادشاہوں وغیرہ کا حال خوب پھیلا کر لکھا ہے، اسی طرح پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں اور ریگستانوں کے بارے میں بھی انوکھی باتیں لکھی ہیں۔ بلکہ ہمارے ابن بطوطہ کا وہ حصہ زیادہ دلچسپ ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں سے متعلق ہے۔ ان بھیانک مقامات کا نقشہ اس نے اپنے لفظوں میں اس طرح کھینچا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے ابن بطوطہ کو خطروں میں پڑنے کا شوق تھا۔ اس کا وہ انوکھا اور دلچسپ واقعہ پڑھیے جو اس پر ایک جنگل میں پیش آیا۔ ہاتھی اور بچھو ایک جنگل میں تنہا رہ گیا۔ وہ تنہا کس طرح رہ گیا، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن اس وقت اسے ہم چھوڑتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے قافلے سے اچانک بچھڑ گیا۔ میں جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ جنگل میں درندوں کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی درندہ جھپٹ پڑے اور تکا بوٹی کر ڈالے۔ میں یہی سوچتا ہوا بڑی دیکھ بھال کے ساتھ ادھر ادھر راستے کی کھوج میں تھا۔ اچانک ایک طرف پتے کھڑکھڑائے۔ میں نے ادھر دیکھا، ایک جھاڑی اس طرف ایک ہاتھی نظر آیا۔ ہاتھی کو دیکھ کر میں گھبرایا اور الٹے پاؤں بھاگا۔ میں بھاگا، ہاتھی میری طرف جھپٹا۔ میں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بالکل ہوش نہ تھا کہ سامنے جو گھاس ہے اس میں کوئی سانپ چھپا ہوا ہو اور مجھے ڈس لے۔ میں ادھر سے ادھر بار بار مڑتا اور آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاتھی کو مڑنے میں ذرا زحمت ہوتی ہے، پھر بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ مڑ مڑا کر پھر میری طرف دوڑنے لگا۔ میں دوڑتے دوڑتے بے دم ہو گیا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اس مصیبت میں تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ دعا کرتے ہی میری سمجھ میں آیا کہ ایک بہت موٹے اور پرانے پیڑ پر چڑھ جانا چاہیے۔ بس میں نے ایک پیڑ کو تاکا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا ہوا اس کے نیچے جا پہنچا۔ جھٹ اس پر چڑھ گیا، درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر جا بیٹھا۔ ہاتھی بھی پیڑ کے نیچے آ گیا۔ اس نے ایک ٹکر پیڑ پہ ماری، لیکن پیڑ تھا پرانا اور بہت ہی موٹا، اس کی جڑیں بہت گہرائی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھی اسے نہ گرا سکا۔ میں نے موٹی موٹی ٹہنیاں بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھیں اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہاتھی کچھ پیچھے ہٹا اور اس نے بڑھ کر پھر ایک ٹکر ماری، لیکن پیڑ کا کچھ نہ بگڑا۔ میں پیڑ پر بیٹھا دعائیں کرتا رہا اور نیچے دیکھتا رہا۔ ایک بار میں نے نیچے دیکھا، ہاتھی نے پیڑ کی موٹی ٹہنی کو پکڑ کر کھینچا۔ خدا کا کرنا، اس ٹہنی کی جڑ میں کھوکھلی جگہ تھی۔ اس کھوکھلی جگہ سے ایک بھورا بچھو نکلا۔ میری آنکھوں نے دیکھا، وہ بھورا بچھو مرغی کے چوزے کے برابر تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، بچھو کھوکھلی جگہ سے نکل کر ٹھیک ہاتھی کے کان پہ جا گرا۔ اس نے ہاتھی کے کان کے اندر پہنچ کر اس زور سے ڈنک مارا کہ ہاتھی چیخ اٹھا۔ دیکھتے دیکھتے دھڑام زمین پر گر پڑا۔ بچھو اس کے کان سے نکل کر ایک طرف رینگ گیا۔ ہاتھی زمین پر گر کر چنگھاڑنے لگا۔ وہ کان پھٹپھٹاتا، سر اور سوڑ زمین پر پٹکتا رہا۔ زیادہ دیر نہ لگی اور بچھو کے زہر سے اس جگہ مر گیا۔ مر ہی نہیں گیا، خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے زہریلے جانور پیدا کیے۔ اس بچھو کے ٹنک میں نہ جانے کون سا زہر تھا کہ ہاتھی کے سونڑ سے پانی جاری ہو گیا، پھر آنکھیں بہہ پڑیں، کانوں سے کچھ سفید سفید رس رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ زہر کے مارے ہاتھی کا پورا بدن پانی ہو گیا۔ میں اس وقت نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا۔ اس وقت میرے دل میں خدا کی وہ ساری مخلوق آ رہی تھی جو بھیانک اور بے انتہا ڈراؤنی شکل میں خدا نے پیدا کی ہے۔ خدا کی قدرت میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ شیر اور گینڈے کی لڑائی۔ ہاتھی کے مرنے سے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، میری زندگی ابھی باقی ہے، اس لیے تو اللہ نے بچھو کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہ اترنا چاہیے، مگر اللہ کو ایک اور تماشا دکھانا تھا۔ میں درخت سے اترنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک شیر کی گرج سنی۔ میں ادھر دیکھنے لگا، شیر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ پھر گرجا، اس کے دہاڑنے سے میرا دل دہل جاتا تھا۔ میں نے ٹہنیوں کو خوب اچھی طرح پکڑ لیا تھا، ہاتھوں سے بھی اور پیروں سے بھی۔ شیر نے 2-3 بار جست بھی لگائی، لیکن وہ ٹہنیوں میں الجھ الجھ کر گر گیا۔ پھر میں اتنی اونچائی پر تھا کہ اگر ٹہنیاں نہ بھی ہوتی تب بھی شیر اتنی اونچی جست نہیں لگا سکتا تھا۔ شیر مجھے اپنا شکار سمجھ کر دہاڑتا تھا۔ میں سوچتا تھا یہ خوب رہی، ہاتھی سے چھوٹا تو شیر سے پالا پڑا۔ اب دیکھیے اللہ اس سے کس طرح بچاتا ہے۔ میں نے پھر اللہ کو یاد کیا، اللہ نے میری سن لی۔ ایک طرف سے کسی جانور کے آنے کی آہٹ ہوئی، درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے
एक गैंडा निकला। गैंडे की तस्वीर तो मैंने देखी थी, लेकिन असल जानवर को देखने का वही मौका मिला। ये गैंडा हाथी से कद में छोटा था। पैर हाथी से ही की तरह थे, लेकिन छोटे थे। सूंड के बदले गैंडे के थूथन पर एक सींग निकला। निहायत ही नुकीला सींग, निहायत भद्दे रंग और मोटी मोटी खाल वाला ये सींगदार गैंडा झाड़ियों से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने शेर को और शेर ने उसे देखा। गैंडे को इस मौके पर मौजूद देखकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर ये समझ रहा होगा कि जंगल के राजा के सामने इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई कि आए। शेर उसे देखकर गरजा, फिर उसने गैंडे पर जस्त लगा दी। शेर की जस्त बड़ी सच्ची होती है। वह गैंडे के ठीक कंधे पर जा गिरा। कंधे पर शेर ने पंजा मारा। मैंने सुना था कि शेर पंजा मारकर सवा शेर गोश्त ले जाता है, मगर तौबा, गैंडे की खाल भी ना जाने लोहे की बनी थी। शेर नोच ना सका। फिर यह बात ये भी थी कि शेर गैंडे के सींग का भी खतरा था। इधर उसने उसका कंधा नोचा और उधर से सींग मारा। शेर पहले से शायद होशियार था। जैसे ही गैंडे ने सर ऊपर की तरफ करके उसके सींग मारना चाहा, शेर छलांग लगाकर दूर जा गिरा। गैंडा जख्म खाकर बिफर गया। मैंने सुना था कि वह बड़ा सीधा जानवर होता है। मैंने ये भी सुना था कि वह घास खाने वाला जानवर है। मेरा ख्याल था कि वह डरपोक होगा, मगर वह तो शेर के सामने डट गया। सींग तान कर शेर की नज़र से नज़र लड़ा दी, गोया ये कह रहा था कि आ तो अब की बार। शेर छलांग लगाकर मुड़ चुका था। वह भी बिफरा हुआ था। फिर जंगल का राजा किसी की निगाहों को कब देख सकता था। उसने फिर जस्त ली और फिर गैंडे के कंधे पर इस जगह जा गिरा और फिर पंजा मारा। अब की गैंडा बिलबिला गया। इस मर्तबा गैंडा थोड़ी दूर भागा। शेर ने पंजा मारने के साथ जबड़ा फेर लिया, लेकिन गैंडे की खाल उससे अब भी नोची ना जा सकी। मजबूर होकर शेर कंधे से फिर कूदा, मगर वह हार मानने वाला कब था और फिर मुड़ा। इधर गैंडा शेर के 2 हमलों से बहुत ही जख्मी हो चुका था, लेकिन वह भी पीठ दिखाना नहीं चाहता था। वह फिर सींग तान कर खड़ा हो गया कि अब की आ तो बताओ। शेर ने फिर उस पर जस्त लगाई। अब की बार उसने जस्त लगाई तो गैंडा एक कदम पीछे हट गया। पीछे हटने का नतीजा ये निकला कि शेर ठीक उसके सींग पर आ गिरा। गैंडे ने नुकीला सींग उसके सीने में पेवस्त कर दिया। अब शेर गैंडे के सींग पर तड़प रहा था और इस तरह आवाज निकाल रहा था जैसे वह बहुत जल्द मरने वाला है। गैंडा थोड़ी देर तक अपनी जीत के घमंड में शेर को सींग पर लिए रहा। फिर जब शेर का तड़पना खत्म हुआ, यानी जब वह मर गया, तो इस तरह सींग पर लिए हुए एक तरफ घास में चला गया। मैं पेड़ पर बैठा ये अनोखा तमाशा देखता रहा। इसमें शक नहीं कि मैं पेड़ पर उन दोनों दरिंदों से बचा हुआ बैठा था, मगर 2-3 घंटों में मैंने जो कुछ देखा उससे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पेड़ पर से उतरूं। शाम हो गई थी। मैंने पेड़ पर ही बसेरा करने की ठानी। टहनियों को एक दूसरे से अटका और फांस फांस कर मजबूत सा छप्पर बना लिया और उस पर लेट गया। फिर जब नींद आ गई तो फिर कैसा डर और कैसा खौफ। मैं रात भर सोता रहा। सुबह सवेरे जब चिड़िया चहचहाने लगी तो मेरी आँख खुली। मैंने दूर दूर तक नज़र डाली। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि कोई दरिंदा मौजूद नहीं है, तो उतरा। एक जगह तयम्मुम करके नमाज अदा की, फिर एक तरफ चल दिया। मैं बहुत ही चौकन्ना था। किसी तरफ ज़रा सी भी आहट होती तो मैं चौंक जाता। बड़े बड़े दरख्तों को मैंने निगाह में रखा। खतरा सामने आते ही किसी बड़े दरख्त पर चढ़ जाऊं। मोनू से मुलाकात। मैं कुछ ही दूर गया था कि एक तरफ किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने उधर देखा। चीखने वाला तो मुझे दिखाई ना दिया। हाँ, एक कुत्ते को देखा। वह अपने मुंह में बालिश तेल बारिश सा कोई जानवर दबाए भागा जा रहा था। नज़र जमा कर देखा तो जाना कि कुत्ते के मुंह में जानवर नहीं, बल्कि किसी इंसान का बच्चा था। काला काला हाथ पाँव वाला बच्चा। ये देखकर मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। फिर जब कुत्ता मेरे करीब से गुजरा तो पत्थर इसके सर पर फेंक मारा। पत्थर कुत्ते के सर पर लगा। पत्थर लगते ही इसने पी की आवाज़ निकाली। पी करने से कुत्ते का मुंह खुला तो बच्चा उसके मुंह से छूटकर अलग जा गिरा। मैंने एक और पत्थर मारा, फिर एक और फिर पत्थर राव कर दिया। कुत्ता चोट खाकर एक तरफ भाग गया। मैंने बच्चे को उठाया। वह सचमुच इंसान का बच्चा था। मैं उसे हाथ में लिए देख रहा था कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने इधर उधर देखा। काले नंग धुड़ंग एक बौनी औरत हाँफती कांपती चिल्लाती चली आ रही थी। वे अपनी जंगली जुबान में ना जाने क्या कह रही थी। इसने आते ही बच्चे को मेरे हाथ से ले लिया। सीने से लगाकर मुझे देखने लगी। इस औरत का कद गज भर से कम ही था। वह
मेरे सामने खड़ी थी। वह अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और मुझसे कुछ कह रही थी। मैं इसकी बोली समझ ना सका। उसने मेरा कुर्ता पकड़ा और एक तरफ ले चली। मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया। अंदाज़न आधा घंटा चलकर उसने किसी को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी पुकार से 10-12 बौने तीर कमान लिए हुए उधर से आ निकले। मुझे देखकर सब के सब खड़े हो गए। बौनी औरत ने उनसे कुछ कहा। वह सब आकर मेरे सामने औंधे लेट गए। अपना हाथ ज़मीन से रगड़ा और खड़े होकर मेरे आस-पास नाचना, उछलना और कूदना शुरू कर दिया। मैं खड़ा ये सब देख रहा था। मैं इनकी बोली तो ना समझ सका, लेकिन ये समझ गया कि ये सब मुझसे खुश हैं और अपनी इस हरकतों से मुझे खुश करना चाहते हैं। मैं भी खड़ा हँसता और मुस्कुराता रहा। जब बौने अपना रक़्स कर चुके तो मुझे घेरे में ले लिए। एक तरफ चले। थोड़ी दूर चलकर झाड़ियों का एक कुंज दिखाई दिया। वे औरत और बौने ने इस कुंज में घुस गए। मैं समझ ही ना सका कि कुंज के अंदर कैसे जाऊँ। शायद बौने समझ गए। कई बौनों ने झाड़ियों को पकड़कर इधर-उधर खींचा तो रास्ता हुआ। इस रास्ते से मैं अंदर गया। अंदर जाकर कुछ जगह मिली। ये जगह उनके रहने की थी। मैंने वहाँ हाथी के दाँतों के सिवा और कुछ न देखा। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। मैंने अपना थैला खोला, रूखी-सूखी रोटियाँ और कुछ मेवे निकाले। मेरे पास जो कुछ था उसमें से बौनों को भी ज़रा-ज़रा सी दी। मैंने भी खाई। रूखी-सूखी रोटियाँ बौनों ने खूब मज़ा लेकर खाईं। खाकर उन्होंने मुझे एक खेल दिखा। वे एक-दूसरे के कंधों पे सवार होकर नाचे, कंधों से कूदे और फिर उचक-उचक कर वहीं जा बैठे। खूब ही मज़ेदार तमाशा दिखाया। इसके बाद हाथ उठा-उठा कर इस औरत से कुछ कहा। औरत ने एक तरफ इशारा किया। बौने उस तरफ गए। फिर जब लौटे तो हाथी के दाँतों से लदे हुए थे। इन्होंने मुझसे चलने का इशारा किया। मैं इनके साथ चल दिया। रास्ता उनको मालूम था। मैं समझ गया वे मुझे जंगल से बाहर करने जा रहे हैं। मैं इन सब के झुरमुट में था। औरत अपने बच्चे को लिए मेरे बराबर चल रही थी। हम सब दिन भर चलते रहे। ज़ोहर की नमाज़ मैंने रास्ते में पढ़ी। असर के वक़्त बौने मुझे लेकर जंगल के किनारे जा पहुँचे। जंगल के किनारे बहुत से लोग मौजूद थे। बौनों को देखकर वे सब आगे बढ़े। वे सब अपने साथ बहुत सी रोटियां लाए हुए थे। मैं समझ गया ये सब रोटियां देकर बौनों से हाथी के दांत ले जाया करते। मैंने ये बात सुनी भी थी, लेकिन आज बौनों ने रोटियों की तरफ तवज्जो ना दी। इन्होंने सारे के सारे दांत मेरे आगे ढेर लगा दिए और पीछे खड़े हो गए। वे अपनी तीर कमान संभाल लिए। शायद इनका मंशा ये था कि अगर किसी शख्स ने जबरदस्ती हाथी के दांत लेने चाहे तो उसको तीर मार देंगे। ये देखकर उन लोगों ने मुझसे हाथी के दाँतों के दाम पूछे। मैंने कहा कि नीलाम करूँगा, जो ज़्यादा दाम देगा उसे दूँगा। मैंने बोली बनवाना शुरू की। हज़ारों की रकम मेरे हाथ आई। इस रकम से मैंने रोटियाँ खरीद कर मैंने बौनों को दी। उन्हें ये इशारा किया कि ज़रा ठहरे रहें। ये मेरा पहला इशारा था कि बौने समझ गए। लोगों से पूछा कि यहाँ रोटियाँ कहाँ मिल सकती हैं। लोगों ने बावर्चियों की दुकानें बता दी। मैंने जाकर ढेरों रोटियाँ खरीदी और लदवा कर बौनों के पास लाया। बौने बहुत खुश हुए। मैंने इशारा किया कि ले जाओ। बौनों ने अपने-अपने सरों पर रोटियाँ ला दी। रोटियाँ लादे-लादे एक बार फिर मेरे गिर्द नाचे और जंगल की तरफ चले गए। वे बार-बार मुझे देखते थे। मैं भी इनको देख रहा था और सोच रहा था कि हम इंसानों के लिए अल्लाह ने कैसे-कैसे मददगार पैदा किए हैं। अगर ये बौने जंगल में ना हो तो हाथी के दाँत हमें किस तरह मिले? कैसे-कैसे एहसानात हैं अल्लाह के। जब बौने नज़र से ओझल हो गए तो मैं लोगों के साथ आबादी की तरफ चल दिया। जंगल के हालात लिखने के बाद हमारा इब्न बतूता लिखता है कि मोमिन का सबसे बड़ा सहारा दुआ है। मोमिन को चाहिए कि अपने मालिक को याद करता रहे और वक्त पड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ दिल लगाए। अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत ऐसे तरीक़ों से करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इस जंगल में अल्लाह ही ने मुझे बड़े से बड़े ख़तरे से बचाया। मैंने हर ख़तरे में अल्लाह ही से दुआ की और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली।